का नेम है क्या लाइंस एंड एंगल। सब तो पहले आप देख रहे हैं लाइन की होती है। सब तो पहले आप देखते हैं लाइन की होती है। लाइन की है कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स की है कलेक्शन है, क्योंकि लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਫਾइनाइट ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ जिस दा कोई एंड पॉइंट नहीं है, which has no end point। जो लाइन है एक ही है कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इसकी लेंथ भी की होती है इनफाइनाइट, इट हैज इनफाइनाइट लेंथ, इट हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। समझ सकी लाइन की होती है इनफाइनाइट पॉइंट्स की कलेक्शन है which has infinite length and which has no any end point। एनी गल समझ सकी। लाइन की अगर कोई थोड़ी तो डेफिनेशन पूछता है लाइंस एंड एंगल चैप्टर का नेम है, अगर थोड़ी तो पहली गल पूछी जा रही है व्हाट इज लाइन, तुसी की बोलोगे इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट which has infinite length and it has no end point। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ एंड पॉइंट नहीं। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ any portion of line which has two end point, any portion of line which has two end point and finite length ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ what you mean by line segment ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ line segment is the portion of line which has finite length and two end points। ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लाइन दी इनफाइनाइट लेंथ होंदी है, लाइन सेगमेंट दी फाइनाइट लेंथ होंदी है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ एंड पॉइंट नहीं ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ एंड पॉइंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਰੇ, ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੇ। ਤੇ ਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਰੇ। की बन जूगी रे। तो तीनों च फर्क पता होना चाहिए है लाइन, लाइन सेगमेंट ते रे दे विच। अगर थोड़े तो पूछा गया लाइन तो तुसी की बोलोगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक है इनफाइनाइट पॉइंट्स दी कलेक्शन है which has infinite length, जिसकी की है इनफाइनाइट लेंथ होती है and it has no end point। ਇਹਦਾ कोई भी एंड पॉइंट नहीं ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਐਸ ਇਸ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਹ ਵਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਲਾਈਕ ਐਸ ਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਹੈ, ਸਨ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਨ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰੇ ਇਨ फाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है, एंडलेसली एक्सटेंड कर रही है। एक ही होगी रे। आप टॉर्च लगानी ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ लेकिन दूसरी तरफ तो कोई एंड पॉइंट नहीं। मैं उधर तक भी भेज सकता, उधर तक भी भेज सकता, उधर तक भी भेज सकता, which has no end point, कोई एंड पॉइंट ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ बोलता रे। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ which has no end point। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ इट इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट which has infinite length and has no end point। okay, line segment here it is a portion of line, it is a portion of line which has two end point and finite length। ਜਿਹਦੇ two end points है ਤੇ finite length है। ਤੇ ਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ when the line segment extend indefinitely from one direction। अगर मैं लाइन सेगमेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਐਂਡਲੈਸਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਜੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਨ ਦਾ ਦੋ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਟੂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਰੇ ਦਾ ਵਨ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ, ਇਹਦੀ फाइनाइट लेंथ, रे दी भी इनफाइनाइट लेंथ। ओके बिल्कुल। एक क्या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जेदी की है इनफाइनाइट लेंथ है, नो एंड पॉइंट है। एक क्या पोर्शन ऑफ लाइन है विच हैज टू एंड पॉइंट है एंड फाइनाइट लेंथ है। एक क्या लाइन सेगमेंट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਂਡਲੈਸਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਐਂਡ वन एंड। तीनों पॉइंट क्लियर।
नैक्सट है एंगल। लाइन का मतलब चंगी तरह पता लग गया, क्योंकि जो भी वायरा वगैरह होता है या चैप्टर शुरू होता है पहले ही पूछ सकता है अगला लाइन से लाइन का चैप्टर देने में, अगला पूछो लाइन क्यों होता है, फिर पूछो लाइन सेगमेंट क्यों होता है, फिर पूछो रे क्यों होता है, फिर पूछो एंगल क्यों होता है। हुन एंगल ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? AB रे है, AB रे है, ਉਹਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆਫ two rays, it is a junction of two rays where two rays start from a single point, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੋਲ ਦੋ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਰੇ और एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेज। एंगल की है? यूनियन है टू रेज दा विच स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, जो किसी एक सिंगल पॉइंट तो सेम पॉइंट तो स्टार्ट हो रही है। टू रेज दा यूनियन है, टू रेज दा मिलना है, टू रेज दा यूनियन है, टू रेज दा मिलना है एक पॉइंट तो फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, टू रेज दा मिलना किसी एक सिंगल पॉइंट तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? एंगल। एनी गल समझ चली? लाइन की ਹੁੰਦੀ ਹੈ collection of point which has a infinite length, ਜਿਹਦੀ infinite length ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚਲੀ? ਅੱਗੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਟਾਈਪ, ਅੱਗੇ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਟਾਈਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਗਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਗਲ, मतलब कि ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਜੋ ਐਂਗਲ 0 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ लेकिन 90 तो छोटा है, जो एंगल मतलब थीटा लिखता है उस एंगल को जब मर्जी लो, जो एंगल 0 तो बड़ा है 90 तो छोटा है ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ हैं एक्यूट एंगल। ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? एक्यूट एंगल। जो एंगल 0 तो बड़ा है लेकिन 90 तो छोटा है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 ਦਾ ਹੈ, जो एंगल 90 ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ हैं राइट एंगल। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? राइट एंगल। वो एंगल जो 90 तो बड़ा है लेकिन 180 तो छोटा है, वो एंगल जो 90 तो बड़ा है लेकिन 180 तो छोटा है ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। वो एंगल जो पूरा ਦਾ पूरा 180 ਦਾ ਹੈ, पूरा ਦਾ पूरा 180 ਦਾ ਹੈ, जो स्ट्रेट है ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ हैं स्ट्रेट एंगल। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? स्ट्रेट एंगल। वो एंगल ਜਿਹੜਾ 180 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 180 तो बड़ा है लेकिन 360 तो छोटा है, जो 180 तो बड़ा है लेकिन 360 तो छोटा है ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਿਫਲੈਕਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 0 ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਗਲ, जो 0 तो बड़ा है पर 90 तो छोटा है एक्यूट एंगल, जो 90 का आ गया वो राइट एंगल, जो 90 तो बड़ा है लेकिन 180 तो छोटा है वो ऑब्ट्यूस एंगल, जो पूरा 180 का आ गया स्ट्रेट आ गया वो स्ट्रेट एंगल, जो 180 तो बड़ा आ गया 360 तो छोटा आ गया वो रिफ्लेक्स एंगल। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਐਂਗਲ 80 ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 360 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ 360 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਂਗਲ 80 ਦਾ ਜੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 360 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪੂਰਾ 360 ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਜਿਹਨਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? यूनियन ऑफ टू रेज। टू रेज ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। टू रेज ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਐਂਗਲ जो 0 डिग्री ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਗਲ, ਜੋ ਐਂਗਲ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 90 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। जो एंगल 90 ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। जो 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 180 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ऑब्ट्यूस एंगल। जो एंगल पूरा 180 ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ स्ट्रेट एंगल। जो 180 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 360 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। जो एंगल 180 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 360 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। जो पूरा ਦਾ ਪੂਰਾ 360 ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੱਲੀ? पूरे तक क्वेश्चन डाउट होंगे। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, एंगल दी सारी टाइप्स।
वो देखने च बिल्कुल सेम ने, बस 0 शुरू ही नहीं होया, 360 स्टार्ट होकर खत्म हो गया, देखने च सेम। हाँ जी, बस जे सिंपल एम बन रहा है तो 0 डिग्री है, ये इत्थों तो शुरू के एम दिखा रखे है, नेक्स्ट है क्या नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होंगे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। टू एंगल्स नु मैं कॉम्प्लीमेंट्री कदों कहूंगा ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੈ 90 डिग्री। लाइक एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है, ये दोनों का सम कितना आ गया 90 डिग्री, इस करके दोनों की बोलेंगे ਆਪਾਂ कॉम्प्लीमेंट। लाइक एक एंगल 80 डिग्री है, एक एंगल 20 डिग्री है, इनका ਦਾ ਸਮ 90 नहीं है क्या, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। वो दो एंगल्स ਨੂੰ कॉम्प्लीमेंट्री कहांगे जिनका ਦਾ सम ਕੀ ਹੈ 90 डिग्री। Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है उन्हें बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। Two angles are said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री उनकी बोला जाता है सप्लीमेंट्री। लाइक एक एंगल है 60 दा, एक है 120 दा, ये दोनों सम कितना है 180 डिग्री, सो दे आर सप्लीमेंट्री। एक एंगल है 50 दा, एक एंगल है 150 दा, ये दोनों सम 180 नहीं है तो ये सप्लीमेंट्री नहीं। समझ नहीं? अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट करना है, लाइक एज मैं 36 है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो तब तुम 90 चो माइनस करोगे। अगर मैं कमा किसी एंगल का, मान लो तुम कोई भी एंगल लेता, लाइक एज तुम 40 एंगल लेता, इसका पूछा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो तब तुम 90 चो माइनस करोगे, आंसर आ जाना 50। जे मैं कमा इसका सप्लीमेंट्री फाइंड करो, इसका सप्लीमेंट फाइंड करो, इनु 180 चो माइनस करोगे कितना जो 140। अगर मैं कमा इधर रिफ्लेक्स फाइंड करो तो इनु 360 चो माइनस करोगे तो ये थोड़ा जुआ समझ आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री की होता है जिनका सम 90 होवे, सप्लीमेंट्री की होता है जिनका सम 180 होवे। अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उनु 90 चो माइनस करो, अगर किसी एंगल का सप्लीमेंट करना है उनु 180 चो माइनस करो, अगर किसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है उनु 360 मैं जस्ट ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਰੇ, ਐਂਗਲ, ਐਂਗਲ ਦੀ ਟਾਈਪ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲਸ। ਓਕੇ, किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है 90 चो माइनस, किसी का सप्लीमेंट फाइंड करना है 180 चो माइनस, किसी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है 360 चो माइनस। ओके, ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। क्वेश्चन आंदा लाइन्स एंड एंगल चैप्टर शुरू करने तो पहले ये पूछो लाइन की होता है, फिर लाइन सेगमेंट की होता है, फिर रे की होता है, फिर पूछो एंगल की होता है, एंगल की टाइप पूछ लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की होता है, सप्लीमेंट्री एंगल की होता है, रिफ्लेक्स एंगल की होता है। ओके डन। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट क्या है एडजेसेंट एंगल। देखो ये केवल एंगल है 1 से 2, मान लो कोई 3 है। एडजेसेंटली छोटे ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਐਡਜਸੈਂਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ 3। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਕੋਣ ਹੈ A, मतलब O A B C P Q R S। पहले पूरी गल करते हैं। अगर मैं पूछा एंगल 1 दा वर्टेक्स कौन है तो तुम कहोगे O। अगर मैं पूछा एंगल 2 दा वर्टेक्स कौन है तो भी कौन है। एडजेसेंट एंगल होने की पहली कंडीशन है सेम वर्टेक्स होना चाहिए। की होना चाहिए सेम वर्टेक्स होना चाहिए। ये दोनों का सेम वर्टेक्स है, वो तय किए एडजेसेंट है कि लाइक ऐसे मैं बना रहा हूं, मैं कमाई वाला एंगल देख रहा एंगल एडजेसेंट है नहीं है, क्योंकि इस एंगल का वर्टेक्स आ सी, इस एंगल का वर्टेक्स आ सी, ये दोनों का वर्टेक्स सेम नहीं है, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट केड़े होंगे जिन्हां दा कॉमन वर्टेक्स है। एंगल 1 दा भी वर्टेक्स सही है, एंगल 2 दा भी वर्टेक्स सही है, वो एंगल जिन्हां दा वर्टेक्स सेम है। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਰਮ। ਇਹ ਐਂਗਲ 1 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ। ਐਂਗਲ 1 ਦੀ ਆਰਮ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਐਂਗਲ 1 ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ 1 ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? OB ਤੇ OA। ਐਂਗਲ 2 ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ 2 ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਇਹ। ਆਰਮਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਗਲ 1 ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਰਮ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਮ ਇਹ ਹੈ। ਐਂਗਲ 2 ਦੀ ਆਰਮ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? OA। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? OA। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੁਛ ऐसा बनाया, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, मैं पूछा कि ये दोनों एडजेसेंट है। चलो ए वाला एंगल ते ए वाला एंगल वर्टेक्स का कॉमन है, क्योंकि इसका भी वर्टेक्स यही है, इसका भी वर्टेक्स यही है, वर्टेक्स का कॉमन है। लेकिन इस एंगल दी आर्म किहड़ी है? ए ते ए। इस एंगल दी आर्म कौन है? ए ते ए। कोई कॉमन आर्म है ही नहीं। तो एडजेसेंट एंगल ओनली 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, इसका कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड कंडीशन एक कॉमन आर्म होनी चाहिए है, लाइक एज मेरी चाहिए थी एक भी कॉमन आर्म नहीं है तो एडजेसेंट नहीं है। एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। नीचे चेक कर देखिए दोनों कंडीशंस फुलफिल है। एंगल 3 का वर्टेक्स कौन है? P। एंगल 4 का वर्टेक्स कौन है? P। कॉमन वर्टेक्स है। आर्म चेक करो। एंगल 3 दी आर्म किहड़ी है? OR ते OS। एंगल 4 दी आर्म कौन है? OS ते OK। एंगल 3 दी आर्म OR ते OS, एंगल 4 दी O क्यों ते OS। कॉमन आर्म है जी, सॉरी P क्यों मैं बोल रहा हूं। तो कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है। हम थर्ड कंडीशन की है। थर्ड कंडीशन, पहली कंडीशन कॉमन वर्टेक्स, सेकंड कंडीशन कॉमन आर्म हो गई। थर्ड कंडीशन की है जो नॉन कॉमन आर्म है ना, ये कॉमन आर्म है, ए की है कॉमन आर्म, ए वाली नॉन कॉमन आर्म होगी, ए नॉन कॉमन आ गई। जो नॉन कॉमन आर्म है ना वो कॉमन आर्म दे अपोजिट साइड ते होनी चाहिए। की होनी चाहिए? अपोजिट साइड ते होनी चाहिए। ये कॉमन आर्म है, ਇਹਦੇ नॉन कॉमन आर्म एक तो इस साइड है, दूसरी इस साइड है, तो इस करके ये एडजेसेंट है। ਇਹਦੀ ਸੈਕਟਰ कॉमन वर्टेक्स है, एंगल 3 ਦਾ ਵੀ वर्टेक्स P है, एंगल 4 ਦਾ ਵੀ वर्टेक्स P है। एंगल 3 ਦੀ आर्म PR ਤੇ PS, एंगल 4 ਦੀ आर्म PQ ਤੇ PS, एक कॉमन आर्म भी है। ਤੇ जो नॉन कॉमन आर्म है वो इक्को साइड ਤੇ है। चेक करो, ये कॉमन आर्म है जिससे डबल टिक है, ये कॉमन आर्म है, ये दोनों के नॉन कॉमन आर्म है। जो नॉन कॉमन आर्म है ना वो कॉमन आर्म दे इक्को डायरेक्शन च इस करके एडजेसेंट नहीं है, तो ये एडजेसेंट। तो एडजेसेंटली 3 कंडीशंस हो चुकी है। ये सारी चीज़ां 6th 7th ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਦਾ ओवरव्यू। एडजेसेंटली 3 कंडीशन ਸੀ। फर्स्ट कंडीशन की है? एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कॉमन आर्म होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड होनी चाहिए। नॉन कॉमन आर्म की होती है अपोजिट साइड होनी चाहिए और तक संभव होवे तब। ओके, एक होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मान लो एक लाइन है, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰੇਸ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਰੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? 180 एंगल बना रहे ने। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਇਹ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ। ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਹੈ, ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 6.1 ਐਕਸੀਓਮ ਵੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਓਮ 6.1 पेज नंबर 73 ਤੇ ਐਕਸੀਓਮ 6.1 है। वो की कहती है? इफ अ रे, अगर कोई रे, इफ अ रे स्टैंड ऑन लाइन, स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे किसी लाइन उत्ते स्टैंड है, then ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ adjacent एंगल ने, then sum of two adjacent एंगल, जो adjacent एंगल बन गए
वो की होंगे 180। मतलब अगर एक रे स्टैंड है किसी लाइन उत्ते ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੱਕਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ। मतलब ਉਹ ਪੇਅਰ ਜੋ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਉਹ ਪੇਅਰ ਜੋ ਕੀ ਬਣਾਣਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾਣ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਅਮ 6.1 ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ 6.2 ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। वो 6.2 एग्जाम की कहता है कि अगर कि कोई भी रे स्टैंड है किसी चीज उत्ते जे ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੈ मतलब अगर मैंने पता चल गया लाइन उत्ते रे स्टैंड है ਉਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 180 होगा। अगर ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 180 है तो ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਇਹ ਲਾਈਨ है। क्वेश्चन की होगा कि प्रूफ करो ये लाइन है। जी इसनु लाइन प्रूफ करना है तो मैं जे ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 180 ਦਿਖਾ ਦਾਂ इसदे एडजेसेंट एंगल ਦਾ ਸਮ 180 ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ एक ही एक लाइन। क्वेश्चन एक आऊगा ਹੈਗਾ फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾइन है प्रूफ करना है यही कि एक लाइन है। जो लाइन प्रूफ करनी है देखो 6.2 एग्जाम ਤੁਸੀਂ देख लो ਕੀ ਹੈਗਾ 6.2 एग्जाम की गिट है if the sum of two adjacent angle is 180 degree अगर two adjacent angle ਦਾ sum 180 degree आ गया then ਜਿਹੜੀ नॉन कॉमन आर्म्स है वो की बना लिया लाइन बना लिया। जे adjacent angle ਦਾ sum 180 degree आ गया जो नॉन कॉमन आर्म है वो की बना लिया लाइन बना लिया। जो नॉन कॉमन आर्म वो की बना लिया लाइन बना लिया। कोई डाउट है ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਅਮ 6.1 ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਅਮ 6.2 ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮ ਕੀ ਹੈ 180 ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮ 180 ਹੈ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮ 180 ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋਗੇ ਇਟਸ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਹੈ ਫॉर्म ਆ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਗਿਆ। एक लास्ट बच गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। लास्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट की कहता है जिवें ये थ्योरम है ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਸੀ ਥ्योरम ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ है। थ्योरम की कहती है if two lines इधर ध्यान दो बोलना नहीं if two lines intersect each other then the vertically opposite angle are कितने अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं इनमें तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ना वो इक्वल होंगे। ये अपन यूज था करते आ रहे हैं ये अपन यूज था करते आ रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 देखो एंगल 3 एंगल 4 देखो ये प्रूफ क्यों कर किमें प्रूफ करेंगे देखो चलो हुन मेरी गल सुनो ये 1 ते 4 पूरा एडजेसेंट एंगल है सीधी लाइन पे बन रहा है तो दोनों सम की हुआ 180 डिग्री। उन्हें एक्सियम 6.1 कितना है अगर टू एडजेसेंट एंगल किसी लाइन उत्ते बन रहे हो तो उनका सम कितना है 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम कितना है 180 डिग्री। क्यों लीनियर पेयर की बना रहे ने लीनियर पेयर 1 ते 4 का सम कितना है 180 डिग्री। उसी प्रकार 4 ते 2 का सम ये भी सीधी लाइन बना रहे ने 1 ते 4 सीधी लाइन बना रहे सी 4 ते 2 सीधी लाइन बना रहे एंगल 4 प्लस एंगल 2 इसका भी सम कितना है 180 डिग्री लीनियर पेयर। ए सी फर्स्ट इक्वेशन ए सी सेकंड इक्वेशन ये दोनों सम भी 180 है
ये दोनों समलिनिटी है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किससे इक्वल आ गया? एंगल 4 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 है, एंगल 4 प्लस एंगल 2 भी 180 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किससे इक्वल आ गया? एंगल 4 प्लस एंगल 2 दे। तो एंगल 4 और एंगल 4 कट गया, एंगल 1 किससे इक्वल आ गया? एंगल 2 दे। सिमिलरली तो एंगल 3 भी किससे इक्वल आ गया? एंगल, समझ सकते हैं? ये दोनों का समलिनिटी है, लीनियर पेयर। ये दोनों का समलिनिटी है, लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 है, लीनियर पेयर। एंगल 4 प्लस एंगल 2 180 है, लीनियर पेयर। ये दोनों समलिनिटी है, ये दोनों समलिनिटी है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। 4 कट, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। सिमिलरली 3 थे 4 आपस पर